आईएसआई से फंडिंग का जो मामला था, उस कॉन्स्पिरेसी का आगाज़ कब और कैसे हुआ? पहली बात तो यह है कि जो मेरे खिलाफ केस था, जिसकी बुनियाद पर मुझे अरेस्ट किया गया था, बल्कि टू बी एग्जैक्ट उसका नाम है फारा. इन अमेरिकन लीगल टर्मिनोलॉजी इट्स नोन एज फारा. फारा स्टैंड्स फॉर कि यू आर द एजेंट ऑफ ए फॉरेन गवर्नमेंट. You don't need to be an agent of Pakistan or for any country, but FARA means that you are the agent of any government. Without knowing कि उसकी क्या implications हैं, because when you are the agent of a foreign government, it could be anything. उसका मतलब ये भी हो सकता है कि खुदा न खास्ता being the agent of a foreign government, आप American interest के खिलाफ काम कर रहे थे. That can go even to the extent of being treason. So without knowing what the implications are, because I did not know, obviously, if you will ask me today, I have more than 150 pages from the court कि मेरे खिलाफ क्या केस है. But I am talking about when I was handcuffed, when I was simply told. They were very highly professional, highly professional. ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे हाथ बांधे. But to tell you frankly, honest to God, they were very respectful. They were highly professional. The first thing they told me that you are under arrest as an agent of a foreign government. But no details. Then I told them the very first thing कि मेरी जो लाइफ है ये छुपी हुई नहीं है, ये छपी हुई है. एक चीज़ आप प्रूव नहीं कर सकते कि आई वॉज वर्किंग फॉर एनी गवर्नमेंट, फॉर दैट मैटर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. मैंने उनको उस वक्त भी कहा कि यस आई वॉज इन टच विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. मैंने उनको ये भी कहा कि यस आई वॉज इन टच विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Because without being in touch with the higher authorities in both New Delhi and Islamabad, you should be living in the utopian world. You can't do anything. लेकिन ये कि I was the agent of the foreign government, आप उसको प्रूव नहीं कर सकते. They said no, that's the only case we have against you. And ultimately, you know, कि उन्होंने voluntarily, हमने कोई उसमें, लेकिन we told them that if that is the case, we are going to go to the court and we are going to prove that we are not the agent, because मेरी हर एक एक्टिविटी जो है. और फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने वो रिकॉर्ड भी वगैरह किया है. एंड अकॉर्डिंग टू वन इन्फॉर्मेशन दे हैड मोर देन 140,000 पेजेस ऑफ द इंटरसेप्शन. मैंने कहा वो उर्दू में भी मैंने बात की होगी, कश्मीरी में भी बात की होगी, इंग्लिश में भी बात की होगी, दोस्तों से भी बात की होगी, दुश्मनों से भी बात की होगी. तो आपके पास एवरी रिकॉर्ड है. लेकिन उसके बावजूद मैं कह सकता हूँ कि आप उसको प्रूव नहीं कर सकते आई वाज द एजेंट ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट. उसको उन्होंने ड्रॉप किया. And then after that what they said that you have been getting some funding, और वो funding जो है that was for political activities. Although it is also a very delicate line. When you meet a congressman, when you meet a person of importance, उनसे आप कहें कि कश्मीर के बारे में we need your support. ये भी बहुत important बात है यहाँ पर कि बाद का मेरे खिलाफ ये कहा जाता है कि he was trying to influence the US foreign policy. I will be the last person to influence the US foreign policy. Influence का मतलब यह है कि you want the change in US foreign policy. I as a Kashmiri American, I as a person who has roots in Kashmir, I should be the last person जो American administration से कहे both, whether you are Democrat or Republican, उनसे हम ये कहें कि आप अपनी पॉलिसी को बदल दें. That's a disaster. 4 Prime Minister of India, not 1, 4, they send their highest level of delegations. मैं उसको एक्सप्लाइट करना नहीं चाहता हूँ, बट आई वॉन्ट टू ब्रिंग ऑन द record. उनको प्राइम मिनिस्टर्स ने भेजा था, क्योंकि उसकी ब्रीफिंग मैंने स्टेट डिपार्टमेंट को इन राइटिंग भेजी कि मेरे पास आया कौन, उसका पर्पज़ क्या था. बाद औक़ात मैं स्टेट डिपार्टमेंट से मिला, उनको ज़बानी कहा कि कौन आए थे. तो ये कोई आज की बात नहीं है. वो मेरे पास क्यों आते थे? वो मेरे पास इसलिए आते थे, उनको मालूम था कि मेरी जो कॉन्टैक्ट्स है वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ है. एंड आई न्यू इट कि इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, बट मोर इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ कश्मीर. तो मेरे जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन थे, इट वॉज ओपन टू द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान. I would have been able to meet anytime any president of Pakistan. You just name any president of Pakistan, I have just not met him, I have met him multiple times. You just name any Prime Minister of Pakistan, even the Chief of Army Staff of Pakistan.
I have met them. I have met with the intelligence of Pakistan. And I might have met with the intelligence of India. Why? Because sometimes they came to see me in a group. And I know that it was headed by the cabinet minister of India. Always the cabinet minister of India. Not state minister, cabinet minister of India. But there were other people. Because I know there are limitations in New Delhi and Islamabad. That any initiative taken by the political side of the government, it has to be supported by the intelligence. बुनियादी तौर पर ये जो मेरे खिलाफ एलिगेशन था, आई एम द एजेंट ऑफ पाकिस्तान, वो अमेरिका ने खुद ही छोड़ दिया. आई एम बिकॉज दे न्यू इट. अगर उनको शक नहीं होता, दे वुड नॉट हैव ड्रॉप्ड इट. दे न्यू इट. यस, ये हैव द कनेक्ट. बिल्कुल. क्योंकि दूसरी बात ये कि जो पाकिस्तान में मेरी जितने भी कंटैक्ट्स थे, वेन एवर आई हैड द मीटिंग, नेक्स्ट डे आई इशू द स्टेटमेंट. मेरी उनके साथ मुलाकात हुई, क्या मेजर उसमें थ्रस्ट था. अलबत्ता जब मेरी हिंदुस्तानियों के साथ बात हुई, उसको मैंने डिस्क्लोज नहीं किया. आज तक मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने हिंदुस्तान के किस ऑफिशियल के साथ या किस मिनिस्टर के साथ बात की है. अखबारात के मुताबिक आपने अदालत में तस्लीम किया कि आपने आईएसआई से पैसे लिए और उनसे फंडिंग मौसूल की, और इसके बाद आपने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट के ऊपर भी साइन किया जब आपने गिल्टी प्ली किया. मेरी नॉलेज के मुताबिक वो 81 पैराग्राफ पे मुश्तमिल एक स्टेटमेंट थी. सो वो फैक्ट्स क्या थे? अब 21 पेजेस पर आप कहते हैं या 21 पॉइंट्स पर थे. आई डोंट नो एग्जैक्टली वो क्या थी, क्योंकि आई डोंट रियली ऑनेस्टली रिमेंबर ऑल दोज फैक्ट्स. लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरे कॉन्टैक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पाकिस्तान के साथ थे, तमाम उसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे. लेकिन मेरे खिलाफ जो जिसकी बुनियाद पर मैं 2 साल जेल काट के आया हूँ, अगर उसको रिड्यूस किया गया, वो तो दूसरी बात है. जो सेंटेंस था वो था टैक्स इवैक्यूएशन. उसमें यह है कि जो मुख्तलिफ लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिए हैं कश्मीरी अमेरिकन काउंसिल को, इट वाज नॉट फॉर नॉन टैक्स एग्जेप्शन पर्पज. नॉन टैक्स एग्जेप्शन पर्पज इज दैट इट शुड नॉट बी फॉर द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. तो चूँकि देखिए ना, देयर इज़ अ वेरी डेलिकेट लाइन बिटवीन एजुकेशन एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. क्योंकि व्हेन यू आर रियली मीटिंग अ कांग्रेसमैन, यू आर टेलिंग हिम दैट वी नीड योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इशू ऑफ कश्मीर. इट इज़ नोन एज एजुकेशन. When you are talking to the congressman that we need a bill in order to initiate a bill in the Congress, that's a lobbying. For lobbying, you cannot have the tax exemption status. So there were people, they contribute to the Kashmiri American Council. I was not supposed to give them the letter for tax exemption. So because I have used it for the political activities. So I am telling you the fact for which I went to jail. So I have given them the tax exemption letter, while as that contribution was used for the political activities. So I have accepted that. Then they told me that you have not been truthful to the FBI when you met them. So I accepted that. My 2 counts which I pleaded guilty was, one was tax evacuation, that I did not file the truthful tax return, and secondly I was not that open to the FBI. So I should have been more open to them, so more candid to them. So I said that could have been the mistake. So those are the 2 counts for which I plead the guilty. So आपके कहने का मतलब ये है कि जितनी भी सज़ा आपको काटनी पड़ी, उसमें कोई भी ऐसा इल्ज़ाम नहीं था इसके ऊपर आपको किसी दूसरी स्टेट का एजेंट करार दिया गया हो, या आपके ऊपर आईएसआई आपको सज़ा इसलिए नहीं दी गई कि आपने आईएसआई से पैसे लिए? ना, एजेंट के तौर पर तो नहीं. आप इतने अरसे से कश्मीर के हवाले से अमेरिका की पॉलिसी को देखते आए हैं. पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो तनाज़ा है कश्मीर का, इस हवाले से अमेरिका की पॉलिसी में तब्दीली नज़र आई है, या आपको लगता है कि अमेरिका की जो कमिटमेंट थी कश्मीर के हवाले से उसमें कोई तब्दीली आई है? जो अंदर की सोच है, अमेरिका के अंदर की सोच है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई. एक तो आइडियल होता है, एक प्रैक्टिकल होता है. अंदर की थिंकिंग ये है कि मसले कश्मीर को आपको हल करना होगा. देन अलोन जो ईस्टर्न बॉर्डर पर पाकिस्तान की फौज है, देन अलोन दे कैन विड्रॉ इट एंड पुट इट ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर विद अफगानिस्तान. लेकिन ये तो आइडियल है. लेकिन जो पब्लिक पोस्चर है वो ये है कि इंडिया के साथ इट्स अ मार्केट फॉर पोटेंशियल $100 बिलियन. ओबामा साहब जो दिल्ली गए थे, इनफैक्ट इट वाज इन द प्रेस, द लीस्ट नंबर ऑफ जॉब्स ही इज गोइंग टू गेट इज 100,000 जॉब्स. उस वक्त जॉब की बात हो रही थी, 2010 की बात मैं कर रहा हूँ. तो उस वक्त भी उन्होंने अगरचे कश्मीर की बात की और उसको नेशनल इंटरेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ नहीं किया,
बात करने का मतलब यह है कि अमेरिका के अंदर थिंकिंग है कि इफ पाकिस्तान इज इम्पॉर्टेंट एंड एवरीबॉडी नोज पाकिस्तान इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ हैविंग द स्टेबल अफगानिस्तान। पाकिस्तान की बहुत अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी है, दे रियली वांट द सेटलमेंट ऑफ कश्मीर इशू। पहले तो वो यही कह रहे थे कि कश्मीर का एक ही हल है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, लेकिन अब पाकिस्तान में भी थिंकिंग थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है कि कश्मीरी जो भी फैसला करे हमें वो कबूल होगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका में अच्छा जो पॉलिसी मेकिंग एजेंसीज़ हैं या पॉलिसी मेकिंग पर्सनालिटीज़ हैं, उनकी थिंकिंग है कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। ये भी मैं आपसे बताना चाहता हूँ, दैट डज नॉट एग्जैक्टली मीन कि वो भी ये चाहते हैं कि जो फाइज साहब की थिंकिंग है कश्मीर के बारे में उसी के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि हल ज़रूर होना चाहिए। यानी यू विल बी सरप्राइज कि बरतानिया में एक थिंक टैंक है, चैथम हाउस, इट्स वन ऑफ द independent think tanks, one of the most prestigious think tank of America, United Kingdom। उन्होंने सर्वे किया कश्मीर के अंदर, उसके डायरेक्टर से मैं मिला वहाँ लंदन में, बल्कि वो तो वैसे पब्लिश है वो पूरी सर्वे। उन्होंने कहा कि 90 to 95% रिटर्न सर्वे में 90 to 95% of the people from the valley they want independent Kashmir। उन्हें कहा 99.9% सर्वे का आउटकम है 99.9%, दैट मीन्स ऑलमोस्ट, नॉट ऑलमोस्ट, इट मीन्स एवरीबॉडी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जम्मू, वादी, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, 99.9% दे आर अगेंस्ट द स्टेटस को। स्टेटस को मीन्स वट एवर इज इंडिया, वट एवर इज पाकिस्तान। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि कश्मीर के अंदर फ्रॉम 2008, विच इज़ 5 years, इट्स नॉट जस्ट फॉर ए डे, फॉर ए मंथ, फॉर ए ईयर, सिंस 2008 जो स्टेट डिपार्टमेंट ने मेरे सामने एक्सेप्ट किया, जो वहाँ की लेटेस्ट रेजिस्टेंस है राइट फ्रॉम 2008, इट इज़ नॉन वायलेंट, इट इज़ मोस्ट पॉपुलर, एंड इंडियन प्रेस इज ऑन द record एट टाइम्स मोर देन 2 million people ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ श्रीनगर। ये जो अदबी तशद्दुद की तहरीक है, ये जो अवामी तहरीक है, इसको आप क्रश नहीं कर सकते। यू कैन क्रश द मोमेंट व्हेन देयर इज अ बंदूक, व्हेन देयर इज गन, देन यू कैन यूज द गन, बट इफ देयर इज नो गन एंड इट इज नॉन वायलेंट एंड एक्सेप्टेड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। टाइम्स ऑफ इंडिया में, आई डोंट नीड टू गो इनटू दोज डिटेल्स, हिंदुस्तान टाइम्स में उन्होंने कहा, इंडियन इंटेलेक्चुअल्स ने, इंडियन स्कॉलर्स ने, इंडियन डिप्लोमेट्स ने, इंडियन पॉलिटिशियंस ने, या हमारी कॉन्फ्रेंस में कहा वाशिंगटन डीसी के अंदर, येस वी हैव बीन देयर। कमाल चुनाई साहब है, वो एडिटर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिव्यू रहे हैं, उसने हमारी कॉन्फ्रेंस में कहा, आई वाज इन कश्मीर, देयर वर मोर देन 1 million people एंड आई डिड नॉट सी अ सिंगल गन। तो क्या अमेरिका के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है? येस, व्हेन देयर वाज अ गन, देयर वाज अ रीजन फॉर इंडिया टू हैव 700,000 आर्मी देयर, बट अमेरिका चाहता है कि ये जो हाल कश्मीर है इसको पीसफुली हाल होना चाहिए, और कश्मीरी ने इसको एक्सेप्ट किया है। येस, देयर वाज अ टाइम फॉर द गन, बट दैट टाइम इज ओवर। Now is the non-violent movement, so everybody has to be, not only everybody has to be the part of, everybody is the part of that non-violent movement. Otherwise you cannot have 2 million people on the streets of Srinagar. कश्मीर के हवाले से आपने कहा कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ में तब्दीली आ रही है, क्या ये तब्दीली अवामी सतह पर आ रही है या हुकूमती और मिलिट्री सतह में भी वो तब्दीली देखने में आ रही है? बड़ा प्यारा सवाल है, प्यारा सवाल इससे कि दिस इज द रियली क्रक्स ऑफ द होल इशू। जैसे मैंने कहा, अगर इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीरी अपनी सोच में तब्दीली नहीं लाएंगे, ऑनली गॉड नोज़ कि हमें कितनी और कुर्बानियाँ, हमें इसी मुराद कश्मीरियों को कितनी और कुर्बानियाँ देना होगी। शाह महमूद कुरैशी साहब, बिकॉज ही हैपन टू बी द फॉरेन मिनिस्टर दैट टाइम, उन्होंने अक़वाम आलम में यहाँ पर बात की, चूँकि ही वॉज द हेड ऑफ द डेलीगेशन, यूजुअली इट द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हु इज द हेड ऑफ द डेलीगेशन इन द यूनाइटेड नेशंस, बट दैट टाइम नो वन कुड कम एंड ही वॉज द हेड ऑफ द डेलीगेशन, बीइंग द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसने यहाँ पर बयान दिया अक़वाम आलम में, कश्मीरी जो चाहे उनके अल्फाज हैं, एंड कोई फॉरेन मिनिस्टर अपनी बात अक़वाम आलम में नहीं कर सकता है अनलेस इट हैज़ बीन क्लियर्ड फ्राम एवरी सिंगल एजेंसी, नॉट ओनली फॉरेन पॉलिसी, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर कमिंग टू स्पीक एट द यूनाइटेड नेशंस। ये सिर्फ फॉरेन ऑफिस के जो ड्राफ्टर्स हैं, स्पीच राइटर्स हैं, वो नहीं लिखते हैं। इट हैज़ टू बी क्लियर्ड फ्राम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, इट हैज़ टू बी क्लियर फ्राम द प्रेसिडेंट, इट हैज़ टू बी क्लियर फ्राम द इंटेलिजेंस, इट हैज़ टू बी क्लियर फ्राम द आर्मी। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की जो ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक जब मसले कश्मीर का हल होगा, वो विल एक्सेप्ट दैट।
This is a change in the thinking and it's a very positive development. पाकिस्तान के हवाले से आपने बात की कि पाकिस्तान की सोच में तब्दीली आई है। क्या भारत की सोच में जो अटूट अंग कहा जाता है कश्मीर को भारत का, उसकी सोच में कुछ तब्दीली आई है? इंडिया की बात मैं कहूँ और उस आदमी की बात कहूँ जो फंडामेंटलिस्ट प्राइम मिनिस्टर था वाजपेयी। वाजपेयी ने अपने पार्लियामेंट के अंदर कहा, एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहा, उन्होंने कहा कि मसले कश्मीर के बारे में, हिंदी में वो बात कर रहे थे, मसले कश्मीर के हल के बारे में अगर आप सीरियस हैं तो ये हल हिंदुस्तान के आइन के अंदर तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम इंसानियत के दायरे में तलाश कर सकते हैं। उनके अल्फाज है इंसानियत के दायरे में। If we are the serious to find the settlement of the issue of Kashmir, it does not need to be within the Constitution of India, it can be within the parameters of humanity. This is the Prime Minister of India speaking. तो सोच में तब्दीली तो हर जगह आई है। मैंने भी कहा कि कश्मीरी जो है, पूरे कश्मीर से मुराद आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, वादी कश्मीर, जम्मू एंड लद्दाख, वो एक इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहते हैं, पूरे कश्मीर का। लेकिन when we are going to go to the negotiating table, we will be very sensitive to the sentiments of the people of Pakistan. We will be very sensitive to the aspiration of the people of India. We are human beings. We are also, हम भी सोचने समझने वाले लोग हैं। Yes, we want the ultimate truth. लेकिन अगर इंडिया को अल्टीमेट ट्रूथ नहीं मिलेगा, अगर पाकिस्तान को अल्टीमेट ट्रूथ नहीं मिलेगा, फिर हमें क्यों मिलेगा? और दूसरी अहम बात, which is the very fundamental article of the international relations, you should never go to the negotiating table if you are not ready for any flexibility, if you are not ready for any sacrifice, if you are not ready to change your stated policy. There is no need to go to the negotiating table. लेकिन चूँकि mere fact that there is a negotiation going on between India and Pakistan, then mere fact they want to talk to the people of Kashmir, इसका मतलब है कि ultimately everybody is ready to modify their stand. And obviously I don't want to tell them कि how far I can go to modify. And I know that India doesn't need to tell me how far they can go to modify. Pakistan does not need to tell me how far they can go to modify. That can be settled on the negotiating table. तो इसलिए हम इंडिया पाकिस्तान थे। मैंने वहाँ कम्बरलैंड से एक स्टेटमेंट इशू किया जब डॉक्टर मनमोहन सिंह और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई। मैंने कहा कि अब टाइम आया है कि मनमोहन सिंह साहब और नवाज शरीफ साहब मिल रहे हैं, कश्मीरी को भी इसमें इंक्लूड करो, कश्मीरी को इंक्लूड करो और तीनों फरीकें जो इसका हल ढूंढेंगे, सो that should be acceptable to all the parties, India, Pakistan as well as Kashmir. कश्मीर अमेरिकन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसने कश्मीरियों का मौक़िफ़ पूरी दुनिया तक पहुंचाने में, ख़ास तौर पे अमेरिका में कश्मीरियों का मौक़िफ़ पहुंचाने पे बहुत काम किया है। आपकी गिरफ़्तारी के बाद शायद उसमें इतनी जो है वो जान नहीं रही। आपको क्या लगता है कि अब जब आप वापस अपनी फील्ड में वापस आ गए हैं तो आपको उस कौंसिल की क्या मुस्तकबिल नज़र आता है और आपको क्या लगता है कि वो कौंसिल कश्मीर के हवाले से क्या किरदार अदा कर सकती है? देखिए, जो आपकी गलतफहमी है वो हर एक पाकिस्तानी भाई की बहन की गलतफहमी है और कश्मीरी बहन और भाई की गलतफहमी। वो गलतफहमी ये है कि वाशिंगटन में या न्यूयॉर्क में या मैं जिनेवा वगैरह में भी जाता रहा, यहाँ जो काम कर रहा होता था ये फाय साहब कर रहे थे। ये ना पहले फाय साहब कर रहे थे ना आज फाय साहब कर रहे हैं। ये एक टीम होती है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। मैं तो पब्लिक फेस था लेकिन काम करने वाले जो लोग हैं वो तो और थे, एंड दे आर स्टिल देयर। सो द ओनली थिंग दे नीड टू डू इज़ दे नीड टू हैव अ डायरेक्शन। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ 3 दिन हुए हैं, आई टॉक टू सईद अली गिलानी, मैं वहाँ वादी कश्मीर की बात करता हूँ। आई टॉक टू मीरवाइज उमर फारूक, आई टॉक टू मोहम्मद यासिन मलिक, आई टॉक टू शबीर अहमद शाह, आई टॉक टू नईम खान। ये हमारे लीडर्स हैं कश्मीर के अंदर। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू हाउ इज़ द पल्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ श्रीनगर। मैंने आज़ाद कश्मीर बात की, वहाँ पर मैंने सबों से अभी बात नहीं की। आई टॉक टू फ्यू लीडर्स फ्राम आज़ाद कश्मीर बिकॉज आई रियली वांट टू सी कि मतलब ठीक है, मैं 16 महीने से आई वाज आउट ऑफ टच कि इनमें क्या कौन सी डेवलपमेंट आई है। उनसे मैंने कुछ गाइडेंस ली है, उनसे मैं दोबारा बात करूँगा। यहाँ जो साथी हैं उनको मैं कहूँगा कि दिस इज़ द आवर प्लान ऑफ एक्शन। येस, ठीक है, क्योंकि मैं पब्लिक फेस था, मुझे 1.5 साल जेल जाना पड़ा। जब आप जेल जाते हैं तो उसके लिए यू डोंट नीड टू बी प्राउड ऑफ दैट। इसका मतलब कि यू हैव डन समथिंग रॉन्ग एंड आई लेट मी बी फेयर टू द जज। द जज जिसने मुझे वहाँ पर भेज दिया, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, ही वॉज वेरी फेयर
मेरी फैमिली ने पब्लिकली ये स्टेटमेंट दिया है, एंड आई हैव गिवन दैट स्टेटमेंट विद द फुलेस्ट पॉसिबल कॉन्शियसनेस. येस, आई मेड सम मिस्टेक्स, लेकिन मिस्टेक्स का मतलब यह है कि देन यू शुड टेक द लेसन आउट ऑफ दोज मिस्टेक्स. यानी आई विल टेल यू इट वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज टू बी देयर. यानी मैं तो जो कश्मीर की हिस्ट्री की बात कर रहा था, समटाइम्स आई फील नाउ कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि कश्मीर की हिस्ट्री क्या है. यानी आई हैड अ चांस टू गो deep down into the history of Kashmir. I was able to write more than 2,000 pages about the history of Kashmir, inshallah, which I am going to let you people know what I wrote there. और उसमें भी आप देखिए, शायद इस वक्त आप नहीं देख सकते, लेकिन once it is published, कोई हिंदुस्तान को मैंने गाली नहीं दी, क्योंकि गाली देने से आप किसी मसले का हल तलाश नहीं कर सकते. जब से आपकी रिलीज़ हुई है उसके बाद आपके पाकिस्तान में किसी हाई ऑफिशियल से रब्ता हुआ? नहीं, क्योंकि that's the only restriction I have, not to talk to government of Pakistan. The only restriction I have that I should not talk to any foreign government. So उस foreign government सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, that come even Indian comes there. So no, I have not talked to anybody, not directly, not indirectly, and not only since I came out, but since I was arrested. So, but I have written right from there, from the camp. I have written to more than 24 political leaders of Azad Kashmir. In fact, I have received their letters. क्योंकि वो गवर्नमेंट के नॉलेज में तो होंगे, क्योंकि वो तो प्रिजन में आ गए. And I have called from here to the leadership of Azad Kashmir as well as the Kashmir. Yes, I am in touch with the political leadership of Azad Kashmir as well as some of the political leaders of Pakistan, but I am not in touch with the government officials of Pakistan. So I just want to clear one thing, कि आपके ऊपर अमेरिका की हुकूमत की तरफ से पाबंदी लगाई गई है कि आप किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ रब्ता नहीं रखेंगे? Yes, till I am in the probation. और आपकी प्रोबेशन कब तक जारी है? It is for 3 years. लश्कर तैयबा के किरदार से कश्मीर की मूवमेंट में क्या फ़र्क आया है? आप तो लश्कर तैयबा को जानते हैं मुंबई अटैक से. We know Lashkar Taiba much earlier than that. And let me tell you what has been our stand about Lashkar Taiba and Jaish Muhammad. अगर जैश मोहम्मद का नाम फिर बदल गया है, I think it is something else, but it was Jaish Muhammad before that. September 11 took place in 2001. 2001 में सितंबर 2001 में ये जो ट्विन टावर्स पर टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद से दुनिया बदल गई. मैं आपको वाक़या सुनाना चाहता हूँ इससे पहले का, क्योंकि सितंबर 11 ऑफ 2001 के बाद यू कंडेम दिस, यू कंडेम टेररिज्म, यू कंडेम, एवरीबॉडी नो देम बिकॉज अमेरिका डज नॉट वांट एनीबॉडी टू टॉक अबाउट टेररिज्म. सो यू बिकॉज यू आर एन अमेरिकन सिटीजन नाउ यू आर टॉक अबाउट दिस, यू आर कंडेमिंग लश्कर तैयबा, यू आर कंडेमिंग टेररिज्म. इट्स अ वेरी सेंसिबल अप्रोच. Everybody started condemning, now you are also condemning it. But let me tell you what happened before September 11, 2001. 18 months before September 11, 2001, in Islamabad, one of our leaders who happened to be my guest at least for 3 times here in Washington DC, top leader of Kashmiri resistance in the valley, Abdul Ghani Lawan. उसके बेटी की शादी हुई one of the top leaders of Kashmir freedom movement in आज़ाद कश्मीर, उसका नाम है अमानुल्लाह खान. उसकी बेटी के साथ बाय शी इज़ आल्सो जर्नलिस्ट, उसका नाम अस्मा है, और उनके बेटे का नाम है बिलाल. अब्दुल गनी लोन साहब इस्लामाबाद आए. 18 months, इट कुड बी 16 months, बट मच अर्लियर देन सितंबर 11. उसने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे लीडर ने कहा, अब्दुल गनी लोन साहब ने कहा, उसने कहा जैश मोहम्मद, मैंने कहा जैश मोहम्मद का नाम बदल गया, लेकिन उस वक्त जैश मोहम्मद था. जैश मोहम्मद और लश्करी तैयबा, आपने हमारी सपोर्ट दी है, हम उसका आपको शुक्रिया अदा करने चाहते हैं. बट फॉर गॉड से, उसने इंग्लिश में कहा, आपने हमारी सपोर्ट दिया, उसका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं. फॉर गॉड से फ्रॉम टुडे लीव अस अलोन. और ये इस्लामाबाद में बात करना कोई आसान बात नहीं है. दिस हैज़ बीन आवर पॉलिसी. हमने हिजबुल मुजाहिदीन को कहा, जो हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर की इंडिजिनस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बारे में एल.के. आडवाणी साहब ने कहा था, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, वाजपेयी के नंबर 2 थे. उसने कहा हिजबुल मुजाहिदीन के लोग हमारे अपने बॉयज़ हैं, दैट मीन्स दे आर कश्मीरीज. उनको हमने कहा कि गिव द पीस प्रोसेस ए चांस. तो हमारा जो स्टैंड है वो ये है, मसले कश्मीर जो है एक सियासी इशू है,
इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, नॉट फ्रॉम द 700,000 आर्मी ऑफ इंडिया, दे कैन नॉट सॉल्व द इशू ऑफ कश्मीर। इसमें कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वेदर कश्मीरी और नॉन कश्मीरी, नो मैटर फ्रॉम विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, it's not only that, that's not the solution, that is going to lead us to the disaster, nuclear disaster unfortunately। कश्मीर का एक सियासी हल है, लेकिन वो सियासी हल सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान ढूंढ नहीं सकता है जब तक न उस सियासी हल की तलाश में कश्मीरी लीडरशिप को भी इंक्लूड करे। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि 2008 में, लेट मी आल्सो टेल यू ऑन रिकॉर्ड, इट वाज नॉट द लीडरशिप ऑफ द कश्मीरी पीपल, इट वाज द यूथ ऑफ कश्मीर। कोई एक नहीं, कोई 100 नहीं, कोई 1000 नहीं, मिलियंस की तादाद में, एक दिन नहीं, मंथ्स टुगेदर, एक मुजाहरे में 1 मिलियन से ज़्यादा, दूसरे में 2 मिलियन से ज़्यादा, तीसरे में 1.5 मिलियन से ज़्यादा। इट हैपेंड फॉर मोर देन ईयर एंड इट वाज ऑल पीसफुल। तो कश्मीरी अवाम ने ये एक्सेप्ट किया है, प्रैक्टिकली एक्सेप्ट किया है दैट सोल्यूशन ऑफ कश्मीर टू फोल्ड। नाउ इट इज़ पीसफुल, number 2, it has to be with the fullest possible of Kashmiri people along with India and Pakistan। तो लश्कर तैयबा को, जैसे मैंने कहा, लोन साहब ने शुक्रिया अदा किया, लेकिन उनसे कहा फॉर गॉड सेक लीव अस अलोन। ये अखबार में आया है, ये कोई चोरी छुपे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात थी। और इस्लामाबाद में कहा कि लश्कर तैयबा क्या करता है क्या नहीं करता है तो हमारे उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। एंड वी वांट, but by the way, we want the diplomatic support of Pakistan. We want the political support of Pakistan. Pakistan is the member of the United Nations. Pakistan is the party of the Kashmir issue. To tell you frankly, despite the fact that I am very khilaf allegation that you are the agent of Pakistan, which obviously they dropped, but I am telling you publicly, Kashmiris should be living in the utopian world if they understand that they are going to do anything without the diplomatic support of Pakistan. We need the diplomatic support of Pakistan, not only from the government of Pakistan, from the opposition of Pakistan. आपको क्या लगता है कि अगर कोई स्ट्रेटजी बनाई जाए कश्मीर के हवाले से, वो क्या होनी चाहिए? कश्मीर के मसले का हल अब किस तरह निकल सकता है? देखिए, ये कश्मीर इस इशू के साथ नाइंसाफ़ी होगी अगर, मेरे नज़दीक, अगर हम ये कहेंगे कि कश्मीर का ये हाल होना चाहिए या ये हाल होना चाहिए। इफ़ वी आर रियली गोइंग टू इंसिस्ट ऑन दैट टुडे कि ये हाल होना चाहिए, ये हाल होना चाहिए, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि जिस माहौल में हम मसले कश्मीर का हल ढूंढें। और वो माहौल आप उस वक्त तक क्रिएट नहीं कर सकते हैं जब तक कि ना उसमें तीनों फ़रीक़ें मौजूद हों। हिंदुस्तान उसमें आए बगैर किसी कंडीशन की, पाकिस्तान उसमें आए बगैर किसी कंडीशन, वो ये ना कहे कि ये पाकिस्तान की शाहरा है, ये तो कोई, वो तो कंडीशन होगी ना। हिंदुस्तान ये कहेगा कि अटो टांगे तो बात करती है, वो की कंडीशन होगी। कश्मीर कहेंगे कि तो कश्मीर को आज़ाद होना है, बात करें, नहीं। तो बगैर कंडीशन के वहाँ पर आए और कश्मीरी और हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी आपस में मिले और एक टाइम बाउंड नेगोशिएशन शुरू करें। तो इसलिए मैंने कहा कि ये टाइम बाउंड होना चाहिए और तीनों फ़रीक़ें आपस में मिले विदाउट एनी कंडीशन और कीप ऑल द एवेन्यूज़ अवेलेबल। And I, as a Kashmiri American, I have no problem if the people of Kashmir would like to be the part of India. If that is the dominant feeling there, that avenue should be open. If they want to be the part of Pakistan, that avenue has to be open. If they want to be total independent, that avenue has to be open. And let me tell you, there could be something fourth avenue which I have not even thought about. Maybe we can come to that conclusion when we are on the negotiating table. So in other words, we should keep all the options open. We should not keep any condition from anybody except the condition to be non-violent and to be sincere for any settlement. Thank you so much, sir. Thank you so much for your time.